Hmm? How to find gradient of a function? Sir, vector quantity or scalar quantity? So it is a vector quantity. How to find gradient? So उसका होता है del f by del x I cap plus del f by del y j cap. क्या आप हम ग्रेडियंट से क्या चीजें निकाल सकते हैं? एक से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। वो तो टेंजेंट नॉर्मल एक ही बात है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते? यस सर, पॉइंट पी नॉट पे यू की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दिस इज योर del f फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के लिए इट विल बिकम del f ओवर del z j। इसी तरीके से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, योर फंक्शन इज 2 वेरिएबल देन इट विल बी दिस, and if it is 3 variable function is, so I can extend it for j vector. So yesterday we saw that using this gradient we can find the directional derivative of a function duf, and it was coming how much? क्या था ये in terms of gradient? सर duf df upon ds. in terms of gradient सर del f p नॉट डॉट जनरल u. लिख रहे हैं हम अगर तो del f dot q, dot product of these two vectors. These are the vectors. Yes. U is the vector, del f is the vector. It is the formula for the directional derivative. ये हमने कल डिस्कस किया था. And by the dot product formula, it was coming mod of del f cos theta because u is the unit vector. So we saw some observation because it is depending on cos theta that for theta is equal to 0, theta is equal to 0, it function जो डायरेक्शन चेंज होगा u डायरेक्शन में, है ना, that change will be largest, highest change in the direction of what? किस डायरेक्शन में? theta 0 means what I am taking? Same direction. किसके साथ सेम? यू और u del f के साथ। हाँ, क्योंकि ये जो cos थीटा एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन u एंड डेल्टा f। ये आपका u है, सपोज ये डेल्टा f है, ये जो डॉट प्रोडक्ट में आपने दिखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं थीटा 0 कर दूं, 0 मीन्स इफ u इज द एंगल ऑफ द डेल्टा f, u और डेल्टा f आर इन द सेम डायरेक्शन, then changes will be highest, changes will be maximum in the value of the function, है ना, क्योंकि ये चेंज बता रहा है आपको, rate of change in the direction of u. Similarly, at theta is equal to phi, the minimum value of cos theta is -1. So when this u will be here in the opposite direction, cos phi is -1, changes will be minimum, है ना? Yes sir. The function decreases most rapidly, and it will be 0 for theta is equal to pi by 2. So when it is pi by 2, if u is orthogonal to this delta f, then no change in f in direction of perpendicular to del f. ये हमने कल सर डिस्कस किया था। अगर इनके बीच का कोई और एंगल होगा तो वहां पर डिफरेंट वैल्यू आएंगी, फिर इनके बीच में आएगी,
अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो कुछ वैल्यू मैक्सिमम और जीरो चेंज के बीच में होगी, अगर इधर कुछ एंगल है तो मिनिमम ऑफ जीरो चेंज के बीच में कुछ होगी, है ना। कुछ ओके और सर। होगा उसको तो फिर हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू थीटा, अगर कोई पाई बाय 6 पे चेंज है तो यहाँ थीटा पाई बाय 6 लिख दीजिए, क्या हो जाएगी मॉड ऑफ डेल्टा एफ बाई 2, है ना, √3 Yes, sir. √3/2 होगी। तो वो चेंजेस में बाकी चीजें जो होंगी वो आपके पास इन बिटवीन वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन ये जो है डायरेक्शंस, ये हमारे पास 3 डायरेक्शंस है वेयर योर फंक्शन चेंजेस मोस्ट रैपिडली, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड नो चेंज। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं टू स्टडी द नेचर ऑफ द फंक्शन, वेयर इट विल बी चेंजिंग फास्टली and where it will be having no change. So let us take one problem. Clear है concept ये आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव का by यस using सर। gradient, है ना। Yes, sir. So one example, let's take one example, page 787. Find the directions. Find the directions in which fxy is equal to some function given x square by 2 plus y square by 2 increases most rapidly at 1, 1, decreases most rapidly at 1, 1, same, and C is what is the direction of zero change? What are the directions? In fact, if there are more than one direction. What are the directions of zero change? In F at 1, 1. बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर दीजिए। What is the direction where it increases most rapidly? Function given to you. This is the function. बताइए, what is the direction? सेम डायरेक्शन थीटा 0। Zero पे, so what is the value? What is that direction? I want direction. सेम डायरेक्शन। क्या है वो डायरेक्शन, बताइए तो सही। सेम डायरेक्शन मतलब किधर जाऊं, लेफ्ट राइट, क्या डायरेक्शन है? राइट की तरफ सर। सर राइट की तरफ। राइट की तरफ मतलब वेक्टर में कैसे बताओगे उसे, राइट को लेफ्ट को राइट बोल देंगे बस? पैरेलल नहीं जाएगा। सर, पैरेलल। पैरेलल। किसके पैरेलल? जो वेक्टर दिया के। हुआ। तो वो I + डायरेक्शन, J के सर। तो डायरेक्शन तो बताओ, आई जे के टर्म में क्या आ रही है? I + J आ रही है। हाँ तो वो बोलिए ना, लेफ्ट राइट क्या, मैथमेटिक्स में यू नीड कोऑर्डिनेट्स ना। कोई रास्ता कोई बता रहा हो किसी को, राइट चले जाओ लेफ्ट चले जाओ, यू हैव टू फाइंड फर्स्टली डेल एफ। व्हाट इज डेल एफ? xi + yj एट द पॉइंट। हाँ तो 2 है, ये सर। आपका हो गया xi + yj + एट द पॉइंट, 1yj। एट द पॉइंट तो 1, साइड। 1 i + j, ये डायरेक्शन है। यस सर। अब ये आपका, इट इज नॉट अ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए you need vector, you have to divide by its mod, so its direction is u is equal to I + j divided by √2. This is the direction, I by √2 plus j by √2। ठीक है, ये हुई डायरेक्शन के। इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो आपके पास फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस थिंग? z is equal to x square by 2 plus y square by 2. What is this?
सर सर्कल। लो सर्किल है ये, 3 डायमेंशन में सर्किल बनेगा ये। सर स्फीयर बनेगा, स्फीयर बनेगा। स्फीयर में सबकी पावर 2 होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने पढ़ाई तुम्हें? मैंने पढ़ाई थी। यस सर, भूल ओ गया। नो सर। सर एलिप्स। इलिप्स में तीनों होने चाहिए। एलिप्स, हाइपरबोला, स्फीयर, इन सब में सेम डिग्री होती है 2। एक ही फंक्शन है जिसमें एक तरफ डिग्री 1 होती है, दूसरी तरफ 2 होती है। पैराबोला सर, पैराबोलॉइड। तो ये पैराबोलाइड है ये। पैराबोलाइड, यस सर। इसका वर्टेक्स जब आप x0 y0 z is equal to 0, so it's paraboloid whose vertex is 0. 3-dimensional figure, it's a paraboloid. सब चीजें यार याद थोड़ी चाहिए, और याद क्या करना है तो समझने की चीज है। दिख रहा है कि हमारे पास z की डिग्री 1 है, इट विल बी अ पैराबोलाइड whose vertex is 0 0 0। ये एक पैराबोलाइड आएगा इस टाइप का, 3-dimensional फिगर है ये। ओके दिस, so when it is given to you x square by 2, इसी को लिखा हुआ है x y है, z लिख दे, x square by 2 plus y square by 2। so now you got that when it is moving in this direction I plus j, so it will be maximum। तो I plus j by root 2 अगर आप देखेंगे तो इस फंक्शन का कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या लिया हुआ, व्हाट इज द पॉइंट 1,1। अब जब x 1,1 है तो अगर हम 1,1 रखें, z is how much coming, z is how much, सर 1 1 z भी 1 आ रहा है। तो इसका अलावा यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट, यहाँ सपोज करो एक पॉइंट आ रहा होगा 3 डायमेंशन में 1 1 1, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका इधर 1,1 है एक्स वाई पे। तो हेयर इफ यू आर हेयर समवेयर, मैं कैसे बना दूँ लाइक दिस। तो एट दिस पॉइंट इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन I plus j, तो ये 1,1 है, तो यहाँ पर हेयर योर डायरेक्शन ऑफ I plus j, suppose this is your direction, del f it is equal to I plus j, है ना। I1 इस पॉइंट पे I plus j कितना हो गया, 1,1 इसकी टेल है, तो I plus j वेक्टर इज दिस इज द वेक्टर I plus j। तो इसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इसको ऊपर ले जाएं ऐसे तरीके से, इसका इफ यू सी इट इन ऑन 3 डायमेंशन, तो ये आपका वेक्टर जो आएगा इट विल बी लाइक दिस। Here you can say it is like this, पर ऐसे कुछ आएगा। ये फिगर शायद इसमें बुक में बनी हुई है आपकी, देखो दिखाता हूँ, बुक है, बुक इज विजिबल, यस सर। ये है, देखिए ये फिगर है, to get here, this is a विजिबल है ये, दिस इज और पैराबोलाइड। तो अभी सिर्फ डेल एफ को देखिए, जो पिंक लाइन है देखिए, दिस इज एट द पॉइंट 1,1, दिस इज योर डेल एफ डायरेक्शन I plus j। तो ये आपकी डायरेक्शन है R2 पे, तो इसको अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करें, ये आ रहा है। तो इट मीन्स कि जब आपका ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, ये पैराबोलाइड आपका यहाँ फिनिश नहीं हो गया है, ये तो ओपन है ना, दिस इज द ओपन। इन दिस डायरेक्शन में इफ यू विल बी मूविंग, योर चेंज विल बी मैक्सिमम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, क्या था आपका? यस, सेकंड पार्ट इज decreases, so decreases case में what will happen, B part, decreases के क्या केस था, decreases most rapidly when it is opposite to del f, है ना, माइनस। माइनस केवल चेंज। हाँ, so B part में decreases most rapidly, so it decreases most rapidly in the direction of minus del f, minus del f, that means u is equal to minus I by root 2 minus
j/√2। तो इसी की डायरेक्शन, ये डेल एफ की डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करें पीछे, है ना, इट इज योर माइनस डेल एफ। तो इन दिस डायरेक्शन इट विल बी डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली। इस डायरेक्शन को जब आप ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वो ये आ जाएगी ऑन दिस, ऑन द सरफेस। ये माइनस डेल एफ है, ये डेल एफ था, ठीक है। तो अगर इन दिस डायरेक्शन आई विल बी मूविंग, इट विल बी डिक्रीजिंग। सी जीरो चेंज, जीरो चेंज में व्हाट विल हैपन, ऑर्थोगोनल, है ना, व्हेन इट इज ऑर्थोगोनल। तो फॉर जीरो चेंज क्या लिखें, द डायरेक्शन इज ऑर्थोगोनल टू डेल एफ। डेल एफ, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल एफ के ऑर्थोगोनल में आपके पास यू हैव इनफैक्ट टू डायरेक्शन। देखो ये डेल एफ था, तो इसके ऑर्थोगोनल में इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी, है ना, ये दोनों ही ऑर्थोगोनल है इसके। तो क्या आ जाएगा वो u इजिकल टू, ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, अगर आपके पास डेल एफ ये था i/√2 प्लस j/√2, तो ऑर्थोगोनल मीन्स वो वेक्टर जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो किसका हुआ, माइनस I/√2 प्लस I/√2 जे प्लस जे अपॉन और i/√2 माइनस, टू माइनस जे अपॉन √2। है ना, ये दो डायरेक्शन अल्टरनेट माइनस कर लीजिए, एक में i माइनस, एक में j माइनस। तो जिसमें i माइनस है इट मीन्स वो आपका अपोजिट है, जिसमें डिक्रीज हो रहा है। जिसमें j नेगेटिव है इट मीन्स वो इस डायरेक्शन में। So in this way, you can find that these are the two vectors which are orthogonal to this del f. So these will be mutually perpendicular vectors. Okay. Next concept we can use for finding the tangent to the level curve using this gradient. Actually, now we are seeing different applications of gradient. In fact, relations of gradient in finding different things. तो ये आपका था using gradient how to find directional derivative. Next concept is how to find tangent to the level curve. Level curve आपको पता है क्या है, किसे याद है, किसी को level curve, level curve of fxy, कोई फंक्शन अगर गिवन है उसका लेवल कर्व क्या होता है, अरे fxy इक्वल टू क्या पुट कर दिया करते थे हम, सम कांस्टेंट c, सी है ना, एफ एक्स वाई इक्वल हाँ। तो जो c पुट कर दिया आपने, तो अब जो आपका कर्व आएगा ऑन द xy प्लेन, दैट इज योर लेवल कर्व, है ना। प्रॉब्लम करिए इस पे कि आपके पास fxy फंक्शन गिवन है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगर fxy कुछ वैल्यू पुट कर दूं सपोज, तो लेवल कर्व फॉर fxy इक्वल टू 10 विल बी व्हाट। अभी ये क्या है, अभी ये एलिप्सॉइड है, देखिए अभी वही, अभी सॉरी पैराबोलाइड जो भी बनाया था मैंने, है ना, इट इज योर पैराबोलाइड, बट इट्स लेवल कर्व सपोज fxy इज 10, है ना, 10 या 9 ले लें, तो fxy इज 9 मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका लेवल कर्व, इसका मतलब z इज इक्वल टू 9 से आपने कट किया इसको, तो एक सर्किल आएगा, वो सर्किल कहाँ मिलेगा आपको, 3 रेडियस का ऑन द xy प्लेन। तो दिस इज द लेवल कर्व, इट इज अ सर्किल, ये सर्किल है, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो इट्स अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 इन xy प्लेन। इट इज योर सरफेस, सरफेस को हमने fxy इज इक्वल टू 9 से कट किया इस प्लेन से। जब आप प्लेन से कट करेंगे इस पैराबोलाइड को, यू विल बी गेटिंग अ सर्किल, एक सर्किल मिलेगा आपको, है ना। वो सर्किल हमें कहाँ देखना है, इन द xy प्लेन, दैट इज योर लेवल कर्व। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कर्व को क्या नाम था जो यहाँ पर है, व्हाट इज दिस कर्व, काउंटर कर्व, कंटूर कर्व, है ना, कंटूर कर्व था। So here using gradient I can find this level curve. How? देखिए, so you know that for a differentiable function,
एफ एक्स वाई, है ना, एंड लेवल कर्व I want to find. So what I will do, I will cut it by this. So this fxy, this has a constant value. Suppose इसकी constant value c है along some, तो इसकी constant value c होगी, वो along some curve होगी, है ना, एक कर्व ही तो आपका ये this fxy has a constant value, suppose c, along some curve, along some curve, smooth curve. सपोज कर्व की इक्वेशन में ले रहा हूँ r इज इक्वल टू जी टी आई प्लस एच टी जे। ये कर्व है आपका, ये कर्व ही तो इसको, यही कर्व जो आपका लेवल कर्व होगा, ये बनाया नहीं हमने, ये क्या है, इट इज अ कर्व। तो इसको अगर मैं पैरामीट्रिक में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, जी टी आई प्लस एच टी जे। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं इस सर्किल को, आर टी इज इक्वल टू, बताइए, रेडियस 3 है, 3 cos टी आई प्लस 3 sin टी जे, लिख सकते हैं नहीं, इसी सर्किल की इक्वेशन। So if I want to use the gradient, what I will do, I will write the equation in a parametric form. ये लिख दीजिए GTI plus STJ. So for any function along a smooth curve, है ना, the differential function has a constant value c along some smooth curve. यही आपका लेवल कर्व होता है, making the curve level curve of f. So then what will happen? Your fxy is c means what? कि अगर मैं xy की जगह ये पुट करूंगा f of gt and ht, this will be c, है ना, it will be constant. जैसे ये आपके पास ये fxy है यहाँ पर, अब आपने fxy जब 9 रखा है, c रखा है, तो इसका मतलब क्या था कि x की जगह में अगर 3 cos t रखूं और y की जगह 3 sin t रखें यहाँ पे, तो क्या आएगा, रखिए देखिए, 3 cos t स्क्वायर प्लस 3 sin, यही तो लेवल कर्व बन जाएगा। ये यहाँ पुट करें अगर हम, I can say अगर मैं GT और ST रखूंगा is the in the surface, what will happen, you will be getting the constant value. ये लेवल कर्व है, okay, is it clear? Yes, sir. So how we are Yes. getting, हाँ, तो क्या कर रहे हैं कि जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उस फंक्शन में हम एक अगर स्मूथ कर्व लेते हैं, पैरामीट्रिक कर्व, उसे अगर मैं यहाँ रखूंगा तो एफ जी टी एस टी इक्वल टू सी आता है, और यही आपका दिस इज द लेवल कर्व। ये लेवल कर्व अगर हम फंक्शन में रखते हैं तो सी वैल्यू आ जाती है। जैसे ये लेवल कर्व है, इसे मैं फंक्शन में रखूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 3 9 cos स्क्वायर टी प्लस 9 sin स्क्वायर टी इक्वल टू 9। तो आई कैन पुट इन दिस एफ ऑफ जी टी एस टी इक्वल टू सी। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, बिकॉज इट्स डिफरेंशिएबल, तो आई कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, dt of f gt comma st, और c का डिफरेंशिएशन तो 0, इट्स अ कांस्टेंट। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना, यह है कंपोजिट फंक्शन, तो आई विल हैव टू अप्लाई द चेन रूल। अब ये क्या हो रहा है, इट इज लाइक कि योर f इज अ फंक्शन ऑफ xy और xy दे आर द फंक्शन ऑफ t, है ना, t में लिख दिया हमने, एफ एक्स वाई के फंक्शन थे, एक्स वाई टी के, तो क्या होगा चेन रूल, बताइए, व्हाट इज चेन रूल यहाँ पर डी के लिए, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी एफ को, तो हाउ यू विल डू, यू हैव टू गो बाय एस टू टी डायग्राम। ये है, बताओ क्या लिखूं, So del f हम्म upon del x हम्म into dx by dt प्लस plus ना, so del f by del y हाँ Del f over del y हाँ, और सर dy del y over dt dy। हो जाएगा भाई, ये है, dy देखो by dt. आपका फंक्शन एक्स वाई में था, द फंक्शन वाज एफ एक्स वाई, व्हेन एक्स वाई को हमने पुट किया टी में, इट गिव्स यू लेवल कर्व।
तो ये हो गया एफ एक्स बाई टी, ये चेन रूल हो गया, ठीक है। डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी टी। और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट में लिखना चाहूँ, कैन आई राइट डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे, आई जे आर यूनिट वेक्टर, इनटू डॉट प्रोडक्ट डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये तो आ जाएगा इसका, है ना। तो यू गॉट, ये लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दे रहा है। तो यू गॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे, आई जे आर यूनिट वेक्टर, इनटू डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे इज इक्वल टू 0। और x क्या था आपके पास? x तो एक्चुअली जी टी था, और y कितना था? एच टी। ये तो लिया हमने आर टी में, ये x है आपके पास, ये y है। x जगह हमने रख दिया है जी टी, जैसे यहाँ रखा था, x जगह हम रख देते हैं cos t, y की जगह 3 sin t। तो हेयर, और यू कैन से इट इज योर g, इसे यहाँ g लिख देते हैं, डी जी ओवर डी एच, एक ही बात है, x एच जी है, y एच। तो व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या है? ये तो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट एफ है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपके पास आर टी गिवन था, देखो आर टी वाज जी टी आई प्लस एच टी जे, इट वाज योर आर टी। सो व्हाट इज दिस? डी जी ओवर डी टी प्लस डी एच बाई डी टी, आर डैश टी। डी आर बाई डी टी ना, आर डैश ही तो है। ये क्या है? डी आर बाई डी टी। इसका अगर आप डी आर बाई डी टी करेंगे तो व्हाट यू विल राइट? डी जी बाई डी टी आई प्लस डी एच बाई डी टी जे, तो लिखोगे, है ना। तो ये आपका डी आर बाई डी टी है। तो यू गॉट डेल एफ डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये डी आर बाई डी टी क्या होता है? व्हाट इज डी आर बाई डी टी? इफ यू हैव सम कर्व आर टी, तो डी आर बाई डी टी क्या देगा? ये वेलोसिटी, सर ये वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी। कर्व के लिए क्या है? अगर आपके पास कोई कर्व है, सर्किल ही है मान लीजिए, तो डी आर बाई डी टी इज वॉट? क्या देता है ये? एट अ पॉइंट Tangential. टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता टेंजेंट। है ना। तो अगर आपके पास कर्व है आर टी, तो डी आर बाई डी टी गिव्स यू द टेंजेंट एट पॉइंट, एट सम पॉइंट। कोई भी कर्व है आपके पास, उसका फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? टेंजेंट ही तो होता है। अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है तो वही चीज यहाँ पर है। अब आपने एफ एक्स की जगह इसे आर टी में लिख दिया है। सेम कर्व को आई कैन रिप्रेजेंट इन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, आई कैन रिप्रेजेंट इन आर टी, जैसा ये दिखाया मैंने। सर्किल को आई कैन राइट इन दिस फॉर्म आल्सो और इन दिस फॉर्म आल्सो, both representing the same circle. So dy by dx is tangent, यहाँ dy by dt is what? It is tangent to the curve. तो इससे क्या निकल गया आगे? If two vectors dot products of two vector is 0, what does it mean? Del f and dr by dt is perpendicular to each other. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ जो है is normal to the tangent vector, to the tangent vector. to the tangent vector dr by dt, है ना। ये tangent vector है, ये इसके नॉर्मल है। मीन्स if you have some level curve like this is a level curve, suppose fxy is equal to c, तो किसी पॉइंट पे अगर आप डेल एफ निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? इस पे जो टेंजेंट होगी इसके क्या आएगा? हमेशा नॉर्मल आएगा। ऑर्थोगोनल। हाँ, नॉर्मल। हर पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप डेल एफ लेंगे, ये हमेशा नॉर्मल होगा टू द कर्व, है ना। इफ यू आर सेइंग समथिंग नॉर्मल टू द कर्व, इसका मतलब यही है कि नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल, अच्छा डेल एफ हमें मालूम होता है, अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स वाई पता है तो आपको डेल एफ निकालना तो आता ही है, आप निकाल लेते हैं। डेल एफ क्या है? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। तो द पॉइंट इज के इफ यू नो द डेल एफ, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन? ऐसा कुछ रूल पता है कि अगर हमें एक ऑर्थोगोनल वेक्टर पता हो तो हम उसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं?
इससे निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। हमें पॉइंट भी पता है कि ये किसी पॉइंट पर एक्स नॉट वाई नॉट पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इफ सपोज यू हैव, आई वांट टू फाइंड द लाइन थ्रू some point p naught x naught y naught and normal to some vector, suppose vector में n कह दूं, ai plus bj, ai plus bj is क्या होती है बताइए, अगर लाइन निकाल ली मुझे। आपके पास एक लाइन है, ये आपको मालूम है एक्स नॉट वाई नॉट से पास हो रही है, और यहाँ पर आपको एक वेक्टर पता है n जो इसके परपेंडिकुलर है, ये कह रहा हूं मैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसकी इक्वेशन लाइन की क्या होगी? So y minus y0 is equal to n n x minus x naught. So y minus y0 is equal to n x n minus क्या, x naught. ये n, ये क्या चीज Sir, बनी? perpendicular है, तो स्लोप कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे तो तो हमें perpendicular हाँ स्लोप निकाल लेंगे सर, m1 m2 is equal to minus 1 नहीं, इसी में डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में बताओ ना, फॉर्मूला था ये, इसके drs होते हैं, drs a और b अगर आपके पास गिवन है तो क्या आता फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे कोई आर्बिट्रेरी एक्स वाई, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखनी है, प्लस b इंटू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। ये आपके ए बी जो है दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि दे आर ऑर्थोगोनल। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे देगी, समझ में आई बात? इफ यू नो अ पॉइंट and if you know the orthogonal vector, I can find equation of a line. It is the vector equation of the equation of a line. Okay, so here what happening, here n के place में, here your n is what, ये तो del f है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, now I want to find equation of a tangent line। आपको लेवल कर्व गिवन है कोई fxy is equal to c, ये लेवल कर्व है LC। यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द टेंजेंट, आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। और मुझे डेल एफ पता है यहाँ पर, क्योंकि अगर एफ एक्स वाई पता है तो डेल एफ पता है, और आई नो कि डेल एफ एट दिस पॉइंट पी नॉट विल बी ऑर्थोगोनल। तो अगर मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालें, अब हम इस फॉर्मूले को देखते हुए बताओ क्या होगी। The equation of the tangent line at P naught x naught y naught to the given level curve is, अब एक ही जगह क्या होगा, अगर ये डेल एफ है भाई तो डेल एफ क्या बताया आपको मैंने, fx पी नॉट आई प्लस एफ वाई पी नॉट जे। फॉर्मूले में रखो क्या बन जाएगा, एफ एक्स पी नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, भाई ए के प्लेस पे ये आ गया और बी के प्लेस पे ये, प्लस एफ वाई पी नॉट वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा। हमें टेंजेंट की जरूरत पड़ती है इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप से यू विल एबल टू नो द डायरेक्शन की कर्व किस तरह से जा रहा है। तो टेंजेंट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द कर्व, कर्व का नेचर स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, अगर फंक्शन पता है तो हमें एक तरीका मालूम चल गया कि अगर हमें फंक्शन पता है उसका ग्रेडियंट निकाल लें, और हमने अभी चेक किया कि ग्रेडियंट हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट वेक्टर के। तो हम उस फंक्शन का अगर ग्रेडियंट निकाल ले, वी विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। ये आ गई,
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. So it is one more application of the gradient. If you know the gradient of a function, you can find the tangent line. अगर tangent line पता चल जाए आपको किसी curve की at a point, so you will be able to know so many geometrical properties of the curve. क्योंकि tangent ही क्या होती है? यही तो डायरेक्शन बताती है कि किस तरीके से जा रहा है, मूव हो रहा है. ओके. So example number 4. Find an equation for the tangent line to the ellipse ellipse ऐसे given है, x square by 4 plus y square by 2 at ठीक है. बताइए. इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन टू द इलिप्स की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है. एक तरीका तो आपका वही क्लासिकल मेथड है कि आप इसका dy by dx निकालेंगे और उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, फिर आप रखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 क्या नाम है dy by dx x माइनस x1, है ना. और वन मेथड इज जो मैंने आपको बताया अभी ग्रेडियंट का. तो क्या बताइए यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है? ये कुछ इस तरीके से लग रहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. देखो यही तो है. बोलिए. कैन आई ट्रीट इज एज ए लेवल कर्व? क्यों? हेलो. Yes, sir. कैन आई ट्रीट इज एज ए लेवल कर्व? नहीं, इलिप्स को. Yes, sir. The ellipse is a level curve of fxy is equal to x square by 4 plus y square. देखो ये क्या है? ये fxy is equal to 2. So this ellipse I can see that